Good morning, student. Now, in the previous two classes, what we learn? We learn about the real numbers. Okay. So, real numbers means the numbers which are rational and irrational number are combinedly called as a real number. So, there are two types of the number. The first one is a real and the another is the imaginary number. So, imaginary number we will learn in the 11th standard, means after 10th standard. In this year, we learn about the real number. Now, real numbers means the numbers which are either rational or irrational is called as a real number. So, in last year, we already learned about the rational number or a number system. So, in that number system, we learn about the rational number and irrational number. So, combinedly together are called as a real number. Now, in real number, first of all, we learn about the Euclid division lemma. By using the Euclid division lemma, we can find the HCF of the two numbers or the three numbers. तो टू नंबर्स का HCF कैसे निकालना है वो हमने एग्जांपल में किया है. थ्री नंबर का HCF कैसे निकालेंगे उसको ध्यान देंगे एक बार थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग. जैसे एग्जांपल के तौर पे 4, 8 and 12. Okay, 4, 8 and 12. These are the three numbers. Okay, तो ये तीन नंबर है मेरे पास में, तो इसमें से कोई भी दो नंबर चूज करेंगे हम लोग, कोई भी दो नंबर. जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये दो नंबर ले लिए. ओके, अब ये दो नंबर में ग्रेटर नंबर कौन सा है आपका 8, सो 8 इज ग्रेटर देन 4. तो स्टेप 1 क्या आएगा? स्टेप 1 क्या आएगा? 8 is equals to 4 into 2 plus 0. Okay, so A is equals to BQ plus R. A is equals to BQ plus R. Now, as the remainder is 0, it means that this 4 is the HCF of 4 and 8. Therefore, we can say that 4 is HCF of 4 and 8. ये समझ में आ गया? अब आगे बढ़ेंगे. अब ये जो HCF अपना आया है वो नंबर लेना है और लास्ट वाला नंबर लेना है, तीसरा जो बचा है वो. तो ये 4 और 12 में ग्रेटर कौन सा है? 12 इज ग्रेटर देन 4. तो यहां पे हम क्या करेंगे? 12 इज इक्वल्स टू स्टेप 1. स्टेप 1 में क्या करेंगे? 12 इज इक्वल्स टू 4 into 3 plus 0. Okay, so here also the remainder is 0. It means that this 4 is the HCF of 12 and 4. Okay, तो पहले कितना आया? 4 आया, और उसके बाद भी कितना आया? 4 आया. तो 4 क्या हो गया? HCF किसका? 4, 8 और 12 का. तो in this way we can take 3 numbers also, 2 numbers also or 4 numbers also. Now, by Euclid division lemma, we can find the HCF of the 2 numbers and 3 numbers, and after that we discuss about the numbers which are depending on the numbers which are concept which are depending on the Euclid division algorithm, Euclid division lemma. Okay, so here we will take the second exercise. Second exercise में जो first question है, find the factors or the prime factorization of the any number. So by using that prime factorization, the factorization of the 12 is 2 into 2 into 3. And this can be written as 2 square into 3. तो ये हो गया था अपना prime factorization of the 12. So 12 can be factorized by using the prime factorization 2 square into 3. Okay. So here we'll take some example from exercise 1.2. And that questions are depending upon the HCF and LCM by using the factorization method. Means here we are not using division algorithm, means Euclid division algorithm. Here we apply the prime factorization method. So in first example, what we find HCF and LCM of 26 and 91 by using the factorization method, or we can take by using any method. क्योंकि दो नंबर दिए हैं और यहाँ पे स्पेसिफिक बोला नहीं है कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना है कि नहीं करना है. तो either you can find the HCF by using Euclid division lemma or using the factorization method. अब जबकि हमको एलसीएम निकालना है
तो फैक्टराइजेशन मेथड हमारे लिए इजी हो जाएगा क्योंकि एचसीएफ भी निकल जाएगा और एलसीएम भी। एंड वेरीफाई एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। मींस एचसीएफ और एलसीएम का यदि मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उतना ही मल्टीप्लिकेशन किसका आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये टू जो वर्ड है दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट मींस दैट दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन टू नंबर्स आर प्रेजेंट। यदि वहां पे तीन नंबर से तीन नंबर का हमने एचसीएफ फाइंड आउट किया, तीन नंबर का हमने एलसीएम फाइंड आउट किया, सो वी आर नॉट अप्लाइंग, मींस दिस formula is not true for three numbers, four numbers. This formula is true for two numbers only. Okay, two numbers only. Now here HCF into LCM is equals to product of two number, ये फाइंड आउट करना है, ये प्रूफ करना है, हमको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करूंगा। ओके, सो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करूंगा यहाँ पे। नाउ it's 26, so first of all we will take the 26, 2 का डिवीजन पॉसिबल है यहाँ पे, तो what we will get here 2 into 13, 13 2s are 26, okay, means factors of 26 are 2 into 13. Second is 91, 91 में 13 का डिवीजन पॉसिबल है, okay, so 13 into 7, 13 7s are 91, okay. Now we will find the HCF। तो HCF हो गया आपका कितना, देखो जरा चेक करो HCF। HCF means only common we will take। तो common यहाँ पे कौन सा है 13, so 13 is the common, only one common is there that is of 13, so 13 is the HCF। तो HCF कितना है अपना 13। अब निकालेंगे LCM। LCM is equals to, जो common है उसको ले लेते पहले सबसे पहले, क्योंकि LCM निकालने का मेथड आपको पता है क्या है मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द कॉमन इन बोथ, दोनों में जो कॉमन है वो लेंगे। ओके, दूसरा जो बचे हुए वो भी लेंगे, तो 2 लेंगे और साथ में 7 लेंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम लोग। 13 2s are 26 into 7, 7 6s are 42, 42 means 2 carry 4, 7 2s are 14, 14 plus 4 आ गया आपका 18, 182। तो ये हो गया आपका LCM, मींस HCF आ गया आपका 13, LCM हो गया आपका 182। दोनों समझ गए आपको। अब यहां पर HCF भी आ गया और LCM भी आ गया। अब यहां पे ये फॉर्मूला वेरीफाई करेंगे हम लोग। तो पहले निकालेंगे HCF into LCM is equals to, okay, HCF है आपका 13, LCM है आपका 182। मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे। 13 2s are 26 कैरी 2, 13 8s are 13 7s are कितना, ये आ गया आपका 13 7s are 91। तो 13 8s are कितना होगा चेक करते हैं हम लोग एक बार। 8 3s are 24 कैरी 2, 8 1s are 8 plus 2 10, 104 करेक्ट है। 91 plus 13 it is 104, yes correct। so 104 plus 2 106, यहाँ पे 6 दिया, 10 कैरी हो गया। 13 1s are 13, 13 plus 12 23। तो ये आंसर आ गया आपका 2366। now we will find the product of two numbers, okay, the product of two numbers। now here the product of two number करेंगे, product of two numbers is equals to, two numbers कौन सी आपके 26 into 91। ओके, तो 91 से करेंगे मल्टीप्लाई या फिर 26 से करेंगे मल्टीप्लाई। 26 1s are 26 कैरी 2, गॉट इट। अब 26 9s are 9 6s are 54 कैरी 5, ओके, 9 6s are 54, 4 carry 5, 9 2s are 18, 18 plus 5, 18 plus 5 ये आ गया आपका 23, 23, got it। तो 4 plus 2 6, 3 and 2,
2366, ये हो गया प्रोडक्ट। नाउ हियर वी कैन आइडेंटिफाई दैट the HCF into LCM is also 2366 and the product of two numbers is also 2366. It means that HCF into LCM is equals to product of two numbers. मैंने यहाँ पे एक important word बोला था two numbers, means this formula is applicable for only the two numbers. Okay, now where we apply this formula? ये फॉर्मूला कहां पे अप्लाई करेंगे? जब आपके पास में दो नंबर दिए हैं और दोनों नंबर का HCF दिया है और LCM दिया है और एक नंबर दिया है, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे 4 and 8, छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, बहुत बड़ा नहीं ले रहे, 4 and 6 ले लेते हैं। 4 and 6, ओके। 4 और 6 ये नंबर है, ये दोनों नंबर का HCF हो गया 2। HCF कितना है? 2। LCM आपको पता नहीं, मीन्स देयर आर टू नंबर्स एंड वी कैन फाइंड द LCM ऑफ दिस टू नंबर। मीन्स क्वेश्चन दिया है द HCF ऑफ 4 and 6 is 2, then find the LCM. 4 and 6 is 2, find the LCM. So we can apply the formula, same formula, HCF into LCM. HCF into LCM is equals to the product of two number. Product of two number. HCF आपके पास 2 है, LCM आपको पता नहीं है। Product of two number means 4 into 6 हो गया। So LCM is equals to क्या हो गया? 4 into 6 divided by 2. So 2 2s are 4 and 6 2s are कितना? 12. So what we will get? LCM कितना आएगा? 12. Okay. So in this way we can solve the example when the two numbers are given and HCF is given. We can find directly by using this formula. We can find the LCM by using this formula. तो इस टाइप का एक एग्जाम्पल 1.2 में है, आप उसको सॉल्व करके रखना है। You have to solve that example in the 1.2 exercise. Okay. Now here find HCF and LCM of the 12, 15 and 21 by factorization method. And we are not verifying the HCF into LCM into product of two number. Because why we are not verifying? Because here are the three numbers are there. This formula is applicable for only the two numbers, not for the three numbers. Three numbers के लिए यहाँ पे formula नहीं है ये। Identification or the verification is for only the two numbers, not for the three numbers and four numbers also. Okay, so here we will find the solution. Solution is what? First of all, we will find the factorization of 12. So 12 can be factorized at 2 into 2 into 3. 2 2s are 4, 3s are 12. 15 can be written as 3 into 5. 3 5s are 15. 21 can be written as 3 7s are 21, 7 3s are 21, correct है? Means these are the factors. Okay, now we will find the HCF. अब HCF का मतलब आपको क्या पता है? Only we will take the common in all the three numbers. तीनों नंबर्स में जो कॉमन है वही लेना है, दो नंबर में कॉमन बिल्कुल भी नहीं लेना। हमें यहां पे तीन नंबर दिए हैं, तो तीनों नंबर में जो कॉमन है वही आएगा HCF। मान के चलो यहां पे 4 नंबर्स है, तो चारों में कॉमन चाहिए। मान के चलो यहां पे 10 नंबर है, तो पूरे 10 नंबर में कॉमन चाहिए। ओके, एक में भी वो नंबर नहीं रहेगा तो हम नहीं ले सकते। तो HCF का मीनिंग ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस तीनों नंबर में जो कॉमन है वही लेंगे हम लोग यहां पर। तो यहां पे कॉमन जो दिख रहा है, मुझे दिख रहा है यहां पे 3, so I will take here 3 as a common. So only 3 is common in all the three numbers, that's why we can say that HCF is what? 3. तो HCF आ गया आपका 3, सिंपल, एकदम सिंपल। Got it? अब मुझे चाहिए LCM, तो LCM का मतलब क्या बोला हमने? LCM means least common multiple। लिस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या लेंगे? सबसे पहले जो कॉमन है वो ले लेते हैं, और वी कैन से दैट HCF ले लेते हैं पहले।
यानी तीनों में जो कॉमन है वो ले लेंगे, ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, कोई दो में कॉमन है क्या वो चेक करेंगे, या तो 12 और 15 में कॉमन है क्या, या फिर 15 21 में कॉमन है क्या, या फिर 12 और 31 में कॉमन 21 में कॉमन है क्या, वो देख लेंगे। तो यहाँ पे ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं है दो की जिसमें कॉमन हो, तो यहाँ पे एक भी नंबर अभी कॉमन नहीं बचा, दोनों में भी नहीं है और तीनों में भी नहीं है। तो अभी क्या करेंगे, जो बचे हुए वो ले लेंगे। तो 2 into 2, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, 5 हो गया और ये 7 हो गया। तो सभी नंबर्स यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 6 2 12 एंड 12 5 से कितना होता है 60, 2 3 6, 6 2 12 एंड 12 5 60, 60 into 7 ये आ गया आपका 7 6 42, 420। तो एलसीएम हो गया आपका 42। समझ के, समझ में आ गया। Means we can find the HCF and LCM by using the factorization method. Okay. Now the next question is why? Why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 in plus 5 are the composite number. Everyone know that what is mean by the composite number and what is mean by the prime number. तो prime का मतलब क्या होगा, प्राइम का मतलब क्या और कंपोजिट का मतलब क्या, ओके सबको पता है व्हाट इज मीन बाय द प्राइम एंड व्हाट इज मीन बाय द कंपोजिट, गॉट इट। फिर भी मेरा काम है एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। प्राइम नंबर मींस द नंबर हैविंग टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स, केवल दो फैक्टर्स रहेंगे, केवल दो फैक्टर, दो से ज्यादा नहीं रहेंगे। एग्जांपल के तौर पे 2, it is 2 into 1, only these two factors. 5 into 1, 13 into 1, means उसमें से एक जो फैक्टर रहेगा वो रहेगा 1 और दूसरा जो फैक्टर रहेगा वो रहेगा itself, वही नंबर। मींस पहला फैक्टर रहेगा 1 और दूसरा फैक्टर रहेगा सेम नंबर, वही नंबर, गॉट इट। तो ये हो गया प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या है, जिसके दो फैक्टर नहीं है, दो से ज्यादा फैक्टर है, एक फैक्टर तो रहेगा नहीं, हाँ एक फैक्टर रहेगा नहीं, क्योंकि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। So not a single number having only one factor, minimum two factor, the number having only minimum two factors. तो two factor में एक तो वो नंबर और 1 रहेगा तो उसको प्राइम बोलेंगे, और जिसमें दो से ज्यादा फैक्टर है वो बन जाएगा आपका कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 4 के फैक्टर चेक करो, 2 into 2 into 1, देखो दिख रहा है आपको, दिखाई दे रहा है, means 2 into 2 into 1, prime factorization must be greater than 2, that is the composite number। 6 नंबर लिख लीजिए, 6 2 into 3 into 1, ये हो गया 12, it is 2 into 2 into 3 into 1, there are the 4 factors, understood। So in this way, अब सर बोले, आप बोलेंगे सर ये 1 नहीं लिखा तो भी चलता है ना, अरे मगर 1 नहीं लिखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, सर यहाँ पे तो दो ही फैक्टर दिख रहे हैं, नहीं दो नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पे कितने फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स है, मींस मोर देन 2 फैक्टर्स है। सो दिस 4 6 12 these are called as a composite number। अब कंपोजिट नंबर का मीनिंग समझ में आ गया, मोर देन 2 फैक्टर है तो कंपोजिट हो गया, और ओनली 2 फैक्टर्स है तो बन गया प्राइम। ओके, मोर देन 2 फैक्टर्स है तो कंपोजिट नंबर, और मोर देन 1 ओनली 2 है तो प्राइम नंबर। अब ये सबसे पहला नंबर ले लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन में, फर्स्ट नंबर कंसीडर करेंगे 7 into 11 into 13 plus 13, ये ले लिया हमने। अब यहां पे चेक करो आप, दिस 13 इज द कॉमन, क्योंकि ये हो गए फैक्टर्स, मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है आपको, ओके तो जहां पे मल्टीप्लीकेशन है वहां पे है फैक्टर्स, मगर ये बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया, मींस दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस वन। ओके, यदि ये इस तरह से रहता और यहां पे मल्टीप्लिकेशन रहता तो ये सभी फैक्टर्स बन जाते, मगर यहां पे बन गया ये प्लस की वजह से यहां पे बन गए ये टर्म्स हो गए। तो देयर आर 2 टर्म्स, द फर्स्ट टर्म इज 7 into 11 into 13 and the second term is 13,
सो फ्रॉम बोथ द टर्म वी विल टेक कॉमन 13 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या आपका 7 into 11 प्लस 1, ये बच जाएगा आपका कॉमन। आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, a into b plus c, that is ab plus ac. This is the distributive property that you already learned in the 7th and 8th standard in real number or rational number. Okay, so in rational number we already learn about the distributive property. The same property we will apply here. आप बोलते ना कि इसका यूज क्या है, तो ये यहाँ पे दिख रहा है यूज आपको. Now see 13, 7 into 11, this becomes 77. तो ये बन गया आपका 77 plus 1, that is of equals to 78. Can we say that this 78 is a composite number? This is of your prime and this is of your composite. अब ये कंपोजिट है तो नेचुरली इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे. मान के चलते इसके 3 फैक्टर्स हैं, तो 3 और ये एक फैक्टर बन गया प्राइम नंबर वाला, तो यहां पे टोटल फैक्टर कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे. अब 4 यदि फैक्टर बनते हैं तो क्या ये प्राइम नंबर रहेगा कि कंपोजिट नंबर रहेगा? It is composite number. Therefore, we can say that this is composite number. It means that this number having more than 2 factors. Therefore, the above number, this is having more than 2 factors. Therefore, it is composite number. इसीलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर. समझ में आ गया, ध्यान में आ गया आपको कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है. सो यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज एंड कंप्लीट तो होगी वैसे भी, इसमें एक आध 2 क्वेश्चन बचे होंगे. जो लास्ट वाला क्वेश्चन है लेंदी वाला, उसमें आपको एलसीएम निकालना है. क्या निकालना है आपको उसमें? एलसीएम. पॉज करना है, ओके. एलसीएम निकालना है. Now these are the example for you people. Find the HCF of the smallest prime number and the smallest composite number. तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है. और जो 2 नंबर मिलेंगे आपको, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट, उसका क्या निकालना है आपको? HCF एंड LCM. सेकंड क्वेश्चन दिया है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड वेरीफाई HCF into LCM is equals to the product of 2 numbers. Okay, so there are 5 to 6 questions are there. You can solve all the example. और लास्ट वाला दिया है, find the HCF and LCM of the following numbers by prime factorization method. तो यहाँ पे केवल 4 ही एग्जाम्पल दिए हैं. So after completion of this video, you can solve these example in your rough notebook. rough notebook का मतलब, देखो जो एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करके दिए हैं वो एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक के हैं, तो ये आपके सिलेबस कॉपी में लिखेंगे. मीन्स आपने जो 2 कॉपी बनाई है, जो 2 नोटबुक बनाए हैं, उन दोनों नोटबुक में से एक नोटबुक अपना एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक का रहेगा और दूसरा जो रहेगा, जो मैं एग्जाम्पल देता हूं एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, वो आप उसमें सॉल्व करेंगे दूसरे इसमें. मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, यू हैव टू मेक 2 मैथ्स नोटबुक. पहले मैथ्स नोटबुक में आप एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे पूरे के पूरे, और दूसरा जो नोटबुक है, जो मैं वीडियो के बाद में जो दे रहा हूं यहां पे वर्क, वो आप उसमें सॉल्व करेंगे, ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वीडियो के क्वेश्चन से आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे. ये एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन एक नोटबुक में, और जो एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूं ये पूरे क्वेश्चन दूसरे नोटबुक में आपको सॉल्व करना है. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू.